I know that many of you are here today because you want to break into AI and build your career. I hope that being part of this community will help you to do so. To give you a proper welcome, I'd like to show you around the deeplearning.ai offices and meet some of the teams so they can see where it all happens. Oh, hi, Edward. Do you want to tell our friends at Pine AI what you do at deeplearning.ai? Sure. Hi, everyone. I make articles and other media that help people learn about AI and help them understand the huge impact that AI is having in the world. Today, I'm putting together the next issue of The Batch, our weekly newsletter, and I'm looking for the biggest stories of the week to keep our readers informed. What's been the most surprising thing you've run into working on The Batch? How much is going on in this field? There's never a dull moment. You might think from the outside that machine learning engineers really understand everything about AI, but nobody understands everything about AI because this field is just coming to life right before my eyes as I put this thing together every week. All right, I know you're really busy, so let you get back to it. Thanks. See you later. Let's go meet Jian, who helped me create the deep learning specialization. He's working on an exciting new project. Hey, Jian. So, do you want to tell the people at Pine AI what you're working on? Yes, sure. I'm leading a project with Coursera, focusing on helping people get offers in AI and navigating their career by testing their skills, preparing for interviews and certifying them, as well as matching and referring them to good jobs in AI. That's pretty cool. And what's the most exciting part of your day? The AI field is new. Organizations and jobs are still misunderstood. So I'm excited to help people understand what different types of jobs exist in the field, what tasks they will work on, and what skills are needed to achieve those tasks. That's really important work. Well, it's nice chatting. And now let's go chat to Paul, who is on the product team. Do you want to say hi to our friends at Pine AI and let them know what you're working on? I would love to. Hi, everyone. I lead the product team at deeplearning.ai, where we create AI education content accessible to people all around the world. People like you. And what are you most excited about right now? I am so excited to see our community grow and to see how eager people are to learn more about AI. Thanks, also. Thanks, Andrew. So, as you can see, our team is working hard to support you and help you learn. It's never been easier than before to break into AI. So if you want to build a career, you can leverage online resources available, including open source code, data sets, papers, and online courses like a deep learning specialization on Coursera. Journey, I hope you get your hands dirty too. Don't be afraid of diving in to build your own project. Or go ahead and try to replicate a research paper that you're excited about. One thing that I've seen help a lot of people succeed is if you can build a community or find a community of fellow deep learners you can meet with and study with on a regular basis. In fact, I hope that this Pine AI meetup that you're at right now will be a good place for you to meet these people. I hope you enjoyed the event today and that you learned a lot, both from the talks and from each other. And once again, welcome to the deeplearning.ai community. Assalamu alaikum, all of you guys. I really hope I am audible to you. Am I audible, all of you? Yes, sir. Thank you. Okay, so welcome to the Machine Learning 101 workshop, also known as the Introduction to Machine Learning. Before this, I wanna clear that this is an introductory workshop.
we will not be discussing the mathematics or the programming to this field. So don't expect that we're gonna covering all things that like k-means, regressions, and other some stuff and other algorithms. So that uh, we're gonna not be covering that things. So let's start with our speaker introduction, who is none other than Adnan Zaidi. He is also a deep learning.ai ambassador and also chief AI officer at Proxima.pk. And he's also co-organizer at Kaggle 3x Expert, which is one of the best and one of the largest machine learning platform. And obviously, he's a PhD student in the field of deep learning, where he's research in this field as well. So obviously, we could not think of better person for you to be helping this season, this session on such an important and like trending topic like machine learning. So let's have a round of applause for our speaker. And yeah, this is ready. Can everybody can access him? Okay. Uh, So before kicking off, we want this season and this session clear and focused. So let keep this thing in mind. And obviously, we will be entertaining your queries about the content that will be discussed here. But recommended that you deal these questions at the end of the session so that our moderator can forward this session and forward these queries to the speaker, and he can answer you accordingly. Other important thing to keep in mind are we will be sharing a feedback form during the this session. So let you know how this session went for you, and or any general comment you may have, so can implement those in our future season. So you are requested to fill this form that you remain eligible for the certification that you will be received. After this session, we will be sharing this feedback forms link in the comment box. So during this session is going on. So with that, I will be handing it over to our speaker, Mr. Adnan Zaidi, who will be taking the runs, and he will be introducing you all the word of machine learning and AI. So let's get this session started. Sir, over to you. Thank you, Muhammad Hafiz, for having me, and thank you for the audience to join and spare your time for important interest regarding machine learning. Okay. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दूं अपने आप को. 20 years मेरा एक्सपीरियंस है मशीन लर्निंग और डिफरेंट कंपनीज के साथ कंप्यूटर विजन में, डेटाबेसेस में, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट. सो डिफरेंट चीज़ों में मैंने एक्सपोजर किया है. इस बैकग्राउंड के साथ मैंने ग्रोथ आगे करने के साथ साथ देखा कि कंपनीज जो है वो अपनी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी को मजीद इनहांस करती जा रही है. डेटा जो है साइज वो बढ़ता जा रहा है. सो मैंने अपने करियर को मूव किया एक और डायरेक्शन की तरफ, दैट इज फॉर मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग, और यू कैन से इट्स ऑल अबाउट एआई डोमेन. ठीक है. आज का बताया कि हम क्लीन एंड क्लियर कम्युनिकेशन करेंगे एंड मैं कुछ एक अंडरस्टैंडिंग दे दूं मशीन लर्निंग के ऊपर है, एआई के ऊपर है, या फोकस कर रहे हैं. ठीक है जी. इंट्रोडक्शन में जैसे इन्होंने बताया, आई एम प्रेजेंटिंग कैगल को एआई को प्लस इसी तरह से अलीबाबा का प्लेटफॉर्म मैंने फील्ड जो है वो एआई की तरफ डायरेक्टेड की है. सिमिलरली मैं पीएचडी लर्निंग में भी प्रोग्रेस कर रहा हूं और आप करता हूं कि मुझे एजुकेशन में. तो स्टार्ट करते हैं प्रेजेंटेशन. आप लोगों को स्क्रीन शेयर सर
ओके, आज मैं बताऊंगा एआई इंट्रोडक्शन और उसमें मशीन लर्निंग की बात है। फर्स्ट ऑफ ऑल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक डोमेन है, उसके अंदर सब डोमेन हम कहते हैं मशीन लर्निंग एंड उसका भी सब डोमेन है। ये concept evolve with what is science. तो data science are the techniques to handle the data through AI, machine learning. तो does it mean data handling की जरूरत पड़ी जैसे जैसे ग्रोथ डेटा के साइज में बढ़ती है और थ्रू बैंडविड्थ के थ्रू इंटरनेट यूजर्स के थ्रू पिक्चर्स इमेजेस वीडियोस इट्स लाइक हम करने लगे कि इट्स बिकम्स बिग डेटा। अगर आपसे कोई पूछे तो बिग डेटा नॉट ओनली इन द साइज ज्यादा होता है, साइज ज्यादा बल्कि सिर्फ होता है वर्स्ट, ये बहुत सारी जो होता है इसकी वेरासिटी होती है, वेरिएबिलिटी होती है, लाइक वीज होते हैं इसके अंदर, ठीक है। इट्स लाइक इसमें वैरायटी यानी वैरायटी होती है, टेक्स्ट भी होता है, इमेज भी होता है, ऑडियो भी होती है, वीडियो भी होती है, सिग्नल डेटा भी हो सकता है, एक्स वाई जेड कोई भी वैरायटी उसमें वर्सटाइल हो सकता है। वर्सटाइल डेटा की जैसे हम वीडियो के अंदर देखेंगे कि इमेज टेक्स्ट ऑडियो वीडियो वर्सटाइल है, ठीक है जी। तो बिग टर्मिनोलॉजी डेटा जब हमारे सामने आए तो उसकी प्रॉब्लम करना हमें से नहीं है, तो उसको एआई के थ्रू मशीन लर्निंग डीप लर्निंग के थ्रू हैंडल किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा एआई डोमेन्स की अगर बात करें तो बहुत सारी ज्यादातर एक कॉमन लोग कहता है एआई का मतलब रोबोटिक्स है, जबकि ऐसा नहीं है। डीप लर्निंग है, न्यूरल नेटवर्क्स है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है, मशीन लर्निंग है, एआई का डोमेन है। रोबोटिक्स हाँ बिग सेंस इसलिए आता है कि जब हम ह्यूमन इंटेलिजेंस जब ह्यूमन को ट्रांसफॉर्म करते हैं किसी मशीन के ऊपर, मशीन इंटेलिजेंस करने की कोशिश करते हैं तो वो फिर फॉर्म में बन जाता है, ठीक है। हमारे पास एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन और इसकी डोमेन्स क्या है। हिस्टोरिकल देखें कि एआई क्या हुआ था या पहले भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती रही है और आज ये एक्चुअली दो फेजेस में डिवाइड किया है। इट इज स्टार्टेड फ्रॉम 1950s जो हमारे पास ऐसे मेथड थे, तो हम कह रहे थे कि ये तो वो इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग को आसान हो गई, वहाँ बनना शुरू हुआ। पाकिस्तान में जो है वो जो है वो नथिंग आना शुरू हुई या 90s में, जैसे 40 साल यानी जब पाकिस्तान बना तो उसी टाइम हम कह सकते हैं एआई की भी एवोल्यूशन होना शुरू हो गई। जब हम पहुंचे प्रोबेबिलिटी के बेसिक सब्जेक्ट्स बन चुके तो हमारे पास एक ये में आगे सिर्फ फेल होने और किसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नहीं है। और 1970 से 1970 से 2020 के 20 के दरमियान एआई बिल्कुल गायब हो गया और बहुत कम एप्लीकेशन नजर आई। बट और यूजर्स का डेटा सोशल डेटा दिखना शुरू हुआ तो फिर दोबारा एआई डिवाइस होना शुरू हुआ और 20s में आके या 2010 में हम जो करना शुरू हो गए। अब हमें हर एप्लीकेशन नजर आती है, बस डेटा का साइज जो है वो ए दे जाए। लेकिन आपके माइंड में ये नहीं होना चाहिए कि अब जो है वो पीछे चला जाएगा। अब वो चीज पॉसिबल नहीं क्योंकि डेटा साइज की ग्रोथ 3G 4G और अब ऑब्वियसली 5G तक होगा। हम वर्चुअल रियलिटी की चीजों में इम्प्लीमेंटिंग वीडियोस पे आ जाएंगे, ऑब्जेक्ट्स लेंगे, तो ये सारी चीजें 2D इमेज से निकल के 3D रियलिटी की तरफ आ जाएगी। उसका डेटा पता होगा और एआई और उसकी सॉल्यूशंस बढ़ चुकी है। वेल यहाँ पर बात करें इनिशियली जो हम मशीन लर्निंग था वो बैक प्रोपेगेशन की मेथड ये टेक्निक दोबारा रिवॉल्व किया तो हम कहेंगे सपोर्ट वेक्टर मशीन्स 1990s में बन गए न्यूरल नेटवर्क है जो कि अब मशीन लर्निंग की टेक्निक्स में बड़ी वो रिसर्च एंड देन आगे आगे डीप लर्निंग में पहुंची, ठीक है जी। अच्छा जी, मशीन लर्निंग की डेफिनेशन क्या है हम इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज मशीन लर्निंग। बात समझ आ रही है आपका? कोई डिफिकल्टी हो रही है बात में या आवाज में? नो सर। ठीक है जी, मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। डेफिनेशन ऑफ मशीन लर्निंग इट्स ऑफ लर्निंग लर्निंग से हम वर्ड लर्निंग वर्ड और एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रिलेट अगर हम किसी बच्चे की या किसी स्टूडेंट तो वो सबसे पहले इंटेलिजेंट जब ही बनता है जब उसकी कोई लर्निंग लर्निंग वो स्कूल जा रहा है जब वो टीचर बनता है वो लर्निंग करता है तो लर्निंग करने के साथ में इंटेलिजेंस राइट इंटेलिजेंस होना चाहिए। लर्निंग इज वेरी सिंपल। अब लर्निंग के टाइप की वो लर्निंग की बात हो दैट एनवायरमेंटल जैसे हमने रोड क्रॉस करना, लाइट को देखना, पानी को देखना, ये वो चीजें जो स्कूल या बुक्स में जाती लेकिन हम अपने एनवायरमेंट से अपनी सराउंडिंग कर रहे होते हैं और से मूव कर रहे होते हैं, ठीक है जी। ज्यादा लर्निंग होगी हमारे पास उतनी ही ज्यादा इंटेलिजेंस। हम कह रहे हैं कि हम कंप्यूटर को लर्निंग कराएं या एल्गोरिथम को बनाएं है उसकी लर्निंग की वजह से वो इंटेलिजेंट बन जाता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक एलिमेंट है। लर्निंग क्या करती है? व्हाट इज लर्निंग? लर्निंग एक्सपीरियंस ऑन सम टास्क। आपकी किसी भी काम के ऊपर आप लर्निंग करते हैं उसका एक्सपीरियंस करते हैं। सो डेफिनेशन इज इंपॉर्टेंट। नंबर 1 इंप्रूवमेंट, कोई भी एबिलिटी हो उसकी इंप्रूवमेंट भी जरूरी है। द सेकंड है आप उसकी परफॉर्मेंस की मेजरमेंट कर सकें, पता हो कि ये परफॉर्मेंस ज्यादा हो रही है। एंड फाइनली उस पे बेस करके आप चीज एक्सपीरियंस करें या चीजें इवॉल्व करें तो वो लर्निंग इंटेलिजेंस की तरफ आ जाए, ठीक है। शॉर्टली हम ये कहते हैं कि एक काम को इंप्रूवमेंट करके थ्रू एल्गोरिथम्स और कोई
हम काम करें, परफॉर्मेंस एंड एक्सपीरियंस इस कॉम्बिनेशन है। तो ये सिंपल एक डेफिनेशन बनती है, एक टास्क उसको हमने परफॉर्मेंस एक्सपीरियंस देना है। दिस इज द डेफिनेशन। अगर करेंट डेफिनेशन देखें तो हम तीन जो टर्मिनोलॉजी मैंने बताया, टास्क, परफॉर्मेंस एंड एक्सपीरियंस, जो आपको डेफिनेशन मिलेगी। लर्न इन अ सिस्टम टास्क होगा मोर एफिशिएंटली, ठीक है, चेंजेस दैट इज एक्सपीरियंस करना है टास्क और उसमें एफिशिएंसी या मेजरमेंट। दूसरी डेफिनेशन अगर आप देखते हैं, इट्स बीइंग एक्सपीरियंस्ड, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन है। थर्ड डेफिनेशन ये बात है, माइंड्स इज द डेफिनेशन ऑफ लर्निंग। सो मशीन ऑटोनोमस एक्विजिशन करना है किसी मशीन लर्निंग। ओके जी, यही मेन पैरामीटर्स हैं, फंक्शनल प्रेजेंटेशन ऑफ द फंक्शन एंड फीडबैक अवेलेबिलिटी। यही बेसिस पे एनहांसमेंट करते हैं। डायग्राम की बात हो तो आर्किटेक्चर लाइक लगता है, उसके ऊपर लर्निंग एलिमेंट जो है एक परफॉर्मेंस एलिमेंट के साथ कंपेयर हो जाता है कि कितनी परफॉर्मेंस इन नॉलेज एंड देन टेक सम एक्शंस, फिर अगर उसके फीडबैक से हम और ये डेफिनेशन है। अगर हम चाहें तो आपके जहनों में पहले से ये चीज होगी, बिकॉज ऑल भी लर्निंग की है कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में। अगर मदरसे में जा रहा है तो वो कुरान हिफ्ज कर रहा है, तो एक लर्निंग का एक प्रोसेस है, एलिमेंट परफॉर्मेंस एलिमेंट, प्रॉब्लम जनरेशन। इफ यू टॉक अबाउट मशीन लर्निंग, अगर कंप्यूटर से बात करें तो हमारा मशीन रॉ डेटा, वी हैव डेटा, क्या है, उस डेटा की प्रॉब्लम को ही सॉल्व करने का नाम मशीन लर्निंग। कम था, स्मॉल डेटा था, तो कोई भी इंसान उस डेटा को हल कर, मतलब एक अखबार को समझना पड़े इंसान के बस की बात है, कोई पढ़ सकता है। लेकिन जब मैं कह रहा हूँ कि हमारे तो अब 1 मिलियन पेपर हम नहीं कर सकते। हम अपने लोग बैठ जाएंगे, को एनालाइज कर लेंगे, तो फिर हमें एक मशीन लर्निंग मेथड की जरूरत है। तो वो रॉ डेटा ह्यूज डेटा, ठीक है, बट एज ए प्रैक्टिस हम कोई सैंपल डेटा, उस डेटा को हमने प्रोसेस करना होता है और 100 में तो हम नहीं कर सकते, किसी एक्सेल में, किसी और डेटा, ठीक है, हमने यूनिवर्सिटी का डेटा है, उसके बाद वो सब कि पूरे पाकिस्तान की सारी यूनिवर्सिटी हमें फिर प्री प्रोसेस करना पड़ेगा, कॉलम्स को मैच करना पड़ेगा, सबने अलग अलग स्ट्रक्चर्स बनाए हैं, क्लीनिंग करनी है, कॉलम्स होंगे जो हम रीड करेंगे, कहीं पे डेटा मिस है, मगर एवरेज, सो ये स्टेप जो है डेटा की एक ऑर्गेनाइजेशन से रेलेवेंट। जब हमारे पास डेटा हो जाता है, फिर हम मॉडल बनाएं, लर्निंग हो रही है, ठीक है, एक ट्रेनिंग मॉडल बनाया जाए, ठीक है, मेजरमेंट करता है, दिस इज मेजरमेंट। अब देखिए आवाज पीछे आए, जो डेफिनेशन मैंने आपको बताया लाइक दिस, हमने क्या एक टास्क, उसका एक पर्पस का क्राइटेरिया है और उसका एक्सपीरियंस है, एंड कम बैक हियर, हमने कहा ये हमारा डेटा जो है, हमारी टास्क हमारा उसका मॉडल हो गया, ठीक है, ये मॉडल के रिजल्ट नॉट सेटिस्फाइड है, तो जैसे ही हमें मॉडल की ट्रेनिंग करा है मशीन लर्निंग तो एक्यूरेट है या नहीं है, 100% से पहुंच जाए, तो फिर हम देखते हैं मॉडल। फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल लेते हैं जो कि हम इस स्लाइड पे रहा, तो हमारी उन फेसेस को हम फेसेस के जो है तस्वीरें, उनको हम फॉरवर्ड करते हैं, ट्रेनिंग हुई है, वो कैसे जानता है कि कौन से फेस स्माइल है, वो उसको देख के पहचान लेते हैं और टेस्ट हमारा अराउंड जो है वो अच्छे रिजल्ट्स दे रहा है, होते हैं तो उसको डिप्लॉय कर देते हैं, और हम मोबाइल पे कहीं भी, एंड्रॉइड पे, विंडोज पे, वहां पर हम उसे रिजल्ट देखते हैं। मॉडल लर्निंग करता है, सेंटीमेंट, स्माइल, ये सारी ये चीजें उसे डिटेक्ट करने लगता है, ठीक है जी। तो इट्स लाइक दिस, ये पूरा प्रोसेस है चलता है कि हमने डेटा प्रोसेस किया, ट्रेनिंग करी, अगर रिजल्ट अच्छा है तो डिप्लॉयमेंट सोचेंगे, नहीं आया तो हम रीट्रेनिंग की तरफ जाएंगे, हमारे मॉडल में कोई वीकनेस है तो रिटर्न करें। मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि डीलरनिंग, ठीक है जी, ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन। तो जिसने आपको पहली स्लाइड में बताया कि सबसे जो कुछ भी है वो मशीन लर्निंग की मेथोडोलॉजी में हो रहा है, दिस इज मशीन लर्निंग प्रोसेस, हमारे पास उसको हमने एक्सपीरियंस करवाया है मॉडल पे, उसके बाद बिल्कुल इसी तरह डीप लर्निंग में भी काम, मशीन लर्निंग में काम होता है, डीप लर्निंग जो पहुंचे प्रोसेस में आता है, जबकि मशीन लर्निंग जो है इसके 2 स्टेप में इसको समझने। जब डेटा इनपुट करते हैं तो उसमें कुछ फीचर्स मौजूद होते हैं या डेटा की वैल्यू है, मिसाल के तौर पर कोई फीचर्स होंगे, स्टूडेंट की आईडी, उसका क्लास, रजिस्टर नेम, ये सारे जितने कॉलम हैं ये सब फीचर्स करेंगे, फीचर्स को हम ऑर्गेनाइज काम करते हैं फीचर्स, उसके बाद हम मॉडल को देते हैं और एक आउटपुट तक पहुंचते हैं, या हमारे पास इमेजेस और कैट की इमेजेस, हम वो ऑर्गेनाइज करेंगे और फिर हमारा मशीन लर्निंग डीप लर्निंग वो खुद अपने प्रोसेस से लर्न करेगा, यानी फीचर को भी खुद ही समझेगा और क्लासिफिकेशन को भी खुद ही बिल्ड करेगा, ठीक है, ये ह्यूमन में है, डीप लर्निंग जो न्यूरल नेटवर्क की बेस पे आगे काम करता है, ठीक है। अब मशीन की टेक्नोलॉजीज जो है वो ओल्ड टेक्नोलॉजी है, जबकि डीप लर्निंग या नेक्स्ट, अब ये काम खत्म हो चुका है, डीप लर्निंग की तरफ तो आप सीख रहे हैं, आपका लर्निंग का सब्जेक्ट पढ़ेंगे, फिर आप डीप लर्निंग के सब्जेक्ट पे पहुंचेंगे, करंटली जो है वो कंप्यूटराइजेशन में,
ठीक है जी। अगर हम यहाँ बात करें ने ऑर्गेनाइज किया एम्बेसडर हूँ, तो उसके आइकॉन या लोगो अगर आप और देखें तो वो भी इंजीनियरिंग 1949 में 2000 में हम जो है डीप न्यूरल नेटवर्क्स पे या डीप इनिशिएटिव पे आ गए। सो इस पिक्चर में आपको हिस्ट्री बता रहा हूँ साथ साथ। ठीक है जी, जॉन मशीन का बिग नेम जो कि मशीन लर्निंग लर्न कर सके, एंड देन आइजनबर्ग ने न्यूरल डीप लर्निंग की एक इन्वेंशन। ठीक है, तो आफ्टर ये लर्निंग का प्रोसेस क्या था, डेफिनेटली लर्निंग का फ्लो क्या था, दोनों तरह की लर्निंग में डीप लर्निंग कैसे है और थोड़ा सा चलते हैं। देयर आर थ्री ऑफ मशीन लर्निंग अलग टाइप्स है। वन इज कॉल्ड सुपरवाइज्ड, सेकंड इज अनसुपरवाइज्ड, डीप लर्निंग। यानी कि मशीन लर्निंग की बुक या कोई चैप्टर टॉपिक उठाते हैं तो ये तीन क्लासेस में मिलती है, या सुपरवाइज्ड या रीइंफोर्समेंट की तरह। सुपरवाइज्ड लर्निंग जिसे कहा जाता है लर्निंग जो किसी की या उसके लिए कुछ हमारे पास अनसुपरवाइज्ड में हमारे। ठीक है जी, रिइंफोर्समेंट। ठीक, शॉर्टली हम ये कह सकते हैं लर्निंग को डिफाइन करते हैं। स्टडी आपको टीचर का लर्निंग आज पूरी इंफॉर्मेशन आप तक ट्रांसफर। सुपरवाइज्ड लर्निंग सेल्फ स्टडी, ये अनसुपरवाइज्ड की एग्जांपल है। एंड रीइंफोर्समेंट एक ऐसी स्टडी जो आपको किसी सिस्टम से, जैसे हम कहते हैं एग्जाम में टारगेट होते हैं नंबर्स गिनिंग की, तो वो एनकरेज करती है कि हम एग्जाम में हम अच्छे करें। तो ये तीनों लर्निंग की कैटेगरीज प्रॉब्लम है। अब हम टेक्निकली बात करें। ठीक है जी, रिग्रेशन जो वो क्लासिफिकेशन कैटेगरी टाइप्स होती है, फोरकास्टिंग, प्रेडिक्शन, ऑप्टिमाइजेशन एंड क्लासिफिकेशन हम इसके रिलेशन टैग ये एप्लीकेशंस एक्चुअली। इस तरह अनसुपरवाइज्ड की अगर हम यहाँ पर ऐसी कोई चीज नहीं मानोगी, दैट मींस क्लस्टर बनाते हैं या सॉरी टारगेटेड मार्केट रिकमेंडेशन सिस्टम, कंजम्पशन रिडक्शन स्ट्रक्चर्स भी। इसको हम शॉर्टली ये कह सकते हैं कि बहुत सारा डेटा दिया जाए और हम ग्रुप करें, क्योंकि हमारे पास कोई स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है, हम अपनी ग्रुपिंग करने के लिए हम रिटर्न भी सकते हैं 10 ग्रुप बना तो माइंड ग्रुप्स करें, वो कहते हैं नहीं ये हम रीइंफोर्समेंट में हमने कहा कि जी विद द एनवायरनमेंट कोई गेम खेलने वाला आपने देखा होगा इस गेम को खेलता है तो गेम में भी यही होता है कि उसमें हमें विनिंग और सक्सेस का और फेलियर का एक रेट ले हम आगे बढ़ रहे हैं, लर्निंग करते हैं, फिर और ज्यादा गेम को प्ले करते हैं, टीम उस पे और करते हैं आगे करते हैं। तो इट्स लाइक रिवॉर्ड बेसिस कि आपको नाम क्या मिल रहा है, प्राइस क्या मिल रही है। तो आप ये बस मशीन लर्निंग सुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड एंड रीइंफोर्समेंट लर्निंग। पर टेक्निक्स को मजीद ड्राइव कर आप देख रहे हैं कि सुपरवाइज्ड रिग्रेशन क्लासिफिकेशन के साथ में कुछ और टेक्निक के नाम जिसको हम कह सकते हैं एल्गोरिथम। ये वो सारी टेक्निक्स है जो हमें इस वक्त कहाँ मतलब हम डेटा के सामने डेटा को देख के पता चल रही है अनसुपरवाइज्ड की आइडिया में डेटा रिग्रेशन पे जा रही है या क्लासिफिकेशन। तो हम कोशिश करते हैं कहते हैं अनसुपरवाइज्ड में क्लस्टरिंग में हम प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस की टेक्निक लगाने जा रहे हैं। ऑल ऑफ दी एल्गोरिथम्स है, ठीक है, एल्गोरिथम लाइक सपोर्ट वेक्टर मशीन, क्लस्टरिंग, स्पेक्ट्रम, आइसोमेट्रिक या डेंसिटी और गॉसियन मैट्रिक्स। तो हमारे ज़हन में होती है डेटा साइंस पे कौन सी लर्निंग टेक्निक लगानी है और एल्गोरिथम कौन सा। इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं एल्गोरिथम जो मशीन लर्निंग के उसमें इस तरह कैटेगराइज है। अच्छा, इस में हम कहते हैं कि अगर डेटा कैटेगोरिकल फॉर्म में कंटीन्यूअस और कैटेगोरिकल कर सकते हैं। अगर हम उसको कहेंगे दिस इज टोटल डेटा, और अगर परसेंटेजेस मौजूद है तो दैट इज कॉल्ड कंटीन्यूअस डेटा। ठीक है, परसेंटेजेस का चेंज होता है लाइक 70, 71, 72, 73, लॉट ऑफ 100 नंबर्स की रेंज है, फ्रैक्शन की रेंज है। और कैटेगोरिकल में हम कहते हैं कि जी ए से एफ तक हमारे पास ये 5 ग्रेड है, जैसे ए फिर फेल या बी से ग्रेड आता है। तो कैटेगोरिकल अगर प्रॉब्लम हो है तो हमें चीज इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें हमें कैटेगोरिकल कंडीशन पता है, सुपरवाइज्ड अनसुपरवाइज्ड ये डेफिनेशंस जो हैं वो किस तरह से आगे चलती हैं। सुपरवाइज्ड लर्निंग में इनपुट के साथ आउटपुट भी गिवन होता है, हमें पता होता है कि इस इनपुट के साथ ये आउटपुट, तो हमारा मॉडल उस आउटपुट देगा। सुपरवाइज्ड में हम कहते हैं आउटपुट नहीं होता। ठीक है, इसमें मशीन इनपुट आउटपुट तो हमें खुद आइडेंटिफाई करना होता है कि आउटपुट क्या होना चाहिए या आउटपुट किस तरह से इनपुट्स आउटपुट्स एंड देन ट्रेनिंग और ये इनपुट है आउटपुट हम जो भी एआई अप्रोच होती है वो इनपुट और आउटपुट के साथ जो रिवार्ड वैल्यू है उसी बेस पे चलती है। ठीक है जी, तो इसमें हम कह सकते हैं कि सुपरवाइज्ड में हमारे पास आउटपुट नहीं होता है, सुपरवाइज्ड में आउटपुट भी गिवन होता है ताकि लर्निंग इजीनेस हो। तो सबसे सिंपल मेथड हमारे पास इस पूरी ये सबसे ज्यादा प्रोसेस होता है क्योंकि हमारा इनपुट गिवन है, आउटपुट फोरकास्टिंग और राइट। अनसुपरवाइज्ड थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, आउटपुट गिवन नहीं है तो हमें आउटपुट को एस्टिमेट करना या किसी रीइंफोर्समेंट इज मोर कॉम्प्लेक्स टास्क, इसमें बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होती है कि आपको एक इनवाइट रिवार्ड की बेसिस पे लर्निंग करानी।
ठीक है जी। आई होप स्टार्ट में पहले एआई डीप लर्निंग मशीन लर्निंग बताया और मशीन लर्निंग थी ओके जी। लाइब्रेरीज, ठीक है, बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं मशीन लर्निंग में, लाइक CNTK, कैफे, केरास, पाईटॉर्च। तो ये लाइब्रेरीज पे जिनको कमांड होती है वो इन प्रॉब्लम्स को
हमने डिफाइन किए किसी भी लाइब्रेरी से सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ किरास से काम करने हैं, तो किरास में भी ये सब काम हो सकते हैं, टेंसर फ्लो में भी ये सब काम किए जा सकते हैं, इसी तरह से पाइटॉर्च में ये काम हो सकते हैं। ठीक है जी। बट डिफरेंस है, थोड़ा सा डिफरेंस ये कि कुछ डीप लर्निंग की लाइब्रेरीज हैं यहाँ पर और कुछ इसमें से मशीन लर्निंग की लाइब्रेरी। ठीक है। इमेज, क्योंकि यहाँ इमेज की बात हो रही है तो इमेजेस पे आपके पास बहुत सारी टेक्निक्स मशीन लर्निंग की है। इमेजेस के अलावा स्पीच यानी ऑडियो डेटा के ऊपर अगर आपको कोई काम करना है, वॉइस पे काम करना है, स्पीच रिकॉग्निशन में बिग स्पीच, स्पीच स्पीकर रिकॉग्निशन एंड देन कस्टम स्पीच। लैंग्वेज प्रोसेसिंग में आ जाए तो बहुत सारी लैंग्वेज की एप्लीकेशंस हैं, लाइक स्पेल चेकर, लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग, लिंग्विस्टिक एनालिटिक्स, एनालिसिस एंड टेक्स्ट एनालिसिस, ट्रांसलेशंस, मॉडल वेब लैंग्वेज। एंड फाइनली आपके पास नॉलेज की एक डोमेन होती है जो नॉलेज रिप्रेजेंटेशन, Q&A मेकर, Q&A क्वेश्चनिंग एंड आंसरिंग मशीन डेवलप की जाती है, रिकमेंडेशन इंजन्स बनाए जाते हैं, सर्चिंग एल्गोरिथम्स लाइक वेब, इमेज, वीडियो सर्च, न्यूज सर्च। वीडियो सर्च का मतलब है नॉट बाय टेक्स्ट बट बाय वीडियो। हम एक वीडियो से किसी वीडियो को सर्च करें, एक इमेज से किसी इमेज को सर्च करें। ठीक है जी। एंड देन ऑटो सजेस्ट एल्गोरिथम एंड मैनी अदर्स। मतलब ये मुझे लगता है कि ये बहुत छोटी स्लाइड है मशीन लर्निंग की एप्लीकेशन के लिए। अभी आप देखेंगे तो आपको इससे ज्यादा स्लाइड्स और इससे ज्यादा जो है वो चीजें मिलती हैं। ओके जी, क्वेश्चन हो तो आप लोग जरूर पूछें एंड इट्स योर टाइम नाउ। आई थिंक 5-10 मिनट्स है क्वेश्चन आंसरिंग के लिए। जी, एनी क्वेश्चन? लोग यहाँ मौजूद हैं, सवाल कर सकते हैं। वेयर टू लर्न AI एंड ML? ओके, कहाँ से पढ़ना चाहिए? देखिए, लॉट्स ऑफ रिसोर्सेज, बेस्ट रिसोर्सेज। नंबर एक, आपके पास इंटरनेट है, कंप्यूटर है, आपके पास सारी चीजें एक्सेसिबल है। ठीक है, आप गूगल पे लिखें बिगिनर्स लेवल, एडवांस लेवल एंड एक्सटेंडेड लेवल, आपको सब कुछ मिलेगा। आई वुड सजेस्ट कीप इन टच विद डीप लर्निंग AI का जो प्लेटफॉर्म है। ये आज एक इवेंट हुआ है तो कुछ आपकी लर्निंग इससे हो गई, मजीद आपके नेक्स्ट इवेंट्स होंगे तो आप उसमें भी लर्निंग कर सकते हैं। ठीक है जी। सो मैं कोई एक प्लेटफॉर्म नहीं कह रहा, आपके पास जो प्लेटफॉर्म आपको समझ आए, आपको यूट्यूब की वीडियो से समझ आता हो, वो इस्तेमाल। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, कोई और सवाल?
Okay, I think over to Mr. मोहम्मद हाफिज अताउल्ला, आपके पास मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ, आप इसे कंटिन्यू करें प्लीज। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर योर टाइम, आपने इतना टाइम दिया और ये सब बातें सुनी। आई होप कि कुछ लर्निंग हो गई। Thank you so much, sir, for the enlightenment, Galavi. Now, I would like to call the